Hello, viewers. Welcome to the YouTube channel of Life and More. We have with us today Mr. Vineet Chelani. He's the founder and CEO of Asset Deals. It's a real estate firm and it has been in the market since 2009. Welcome, Mr. Chelani. Thank you, ma'am. Thank you for having me here. Yeah, it's all our pleasure. Okay, so we'll begin with 2009. So, how was the firm set up? Why was the firm set up? Considering Uh, there are so many big players, how did you think that you will be able to make your mark there? Always I wanted to be on the entrepreneur side, and Mm, it somehow happened that my dad purchased a property in 2007-8. So the mm, person who was selling it gave me an mm, inspiration, and I said I can do this. And mm, 2009 December we started this company, Asset mm. Deals. So this Okay. is and real estate always it's an interesting you know industry wherein you make people's money invest and parallelly you grow your money. So that's what attracts me actually. Okay. So how has been your journey now in the last 15 years? Hmm. How has been the journey? And I'm sure you did face many challenges. And how did you overcome them? How did Well, you real tackle the estate big is players a in the market? cycle, ma'am. 2012-13 was not good. In fact, starting 2011. So, but Mm, I say for realtors and for those who are listening, I think mm, हमारे लिए सब अच्छा है. वो mm, डाउनफॉल भी थोड़ा अच्छा होता है, बहुत कुछ सिखाता है. mm, Presently, from last 3 years since COVID, the market is on a high. So we are facing different challenges again in mm, this boom period. But mm, every time is a challenging time and is a learning time. So mm. yes, this time No, particularly when the market is high, it's very exciting. Hmm. No, I'm sure it is exciting, and I'm sure the downside also and the upward trend also has their own challenges. But it's particularly like you talked about COVID period. उस समय पर there was a lot of lull in the market, and so those challenges are something that hit your pocket. Well, ma'am, temporary, Mm, yes. And mm, I work closely with developer like M3M, जो उस mhm. समय भी रुके नहीं थे. तो हमने तो वहाँ भी काम किया था. But yes, Okay. since the entire environment was negative, so yes, it Mm, was a little slow. But post mm, that, I always look at the brighter side in life. उसके बाद तो mm, जो रियल एस्टेट बढ़ा है, लोगों को जो घर चाहिए, किसी को 2 से 3 चाहिए, 3 से 5 चाहिए, तो जो मोमेंट mm. उसके बाद आई है, वो एक्साइटिंग है, वही याद Okay. है. ओके वही याद रखनी भी चाहिए करेक्ट मैम. या सो what's the situation now? सिचुएशन राइट नाउ इज दैट इन्वेंट्री नहीं है बिल्डर्स के पास, बायर्स बहुत है. हम्म, अच्छा. और इन्वेंट्री इज अ चैलेंज, हम्म, बायर्स की चैलेंज नहीं है. सो अगर मैं बात करूं आज की डेट में बायर्स बहुत हैं, सप्लाई है, और सप्लाई और भी आने वाले टाइम में. फाइट जो हमें आ रही है एज रियलिटर्स, वो आ रही है हम्म, इन्वेंट्री की, कि किसका चेक लगेगा. सो दैट्स हम्म. एक्साइटिंग. So why is it so? How come? How come? Because India हाँ, is on a rise. Everyone हम्म, इकोनॉमी इज ग्रोइंग, पॉजिटिविटी है. हम्म, और सबकी इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी चल रही हैं, सर्विस इज बैक, हम्म, सबकी इनकम्स पहले से बहुत बड़ी हैं. एंड हम्म, सबसे ज्यादा मुझे जो लगता है कि लोगों को ये समझ आ गया एक्सपीरियंस से कि मुझे बड़ा घर चाहिए. एज आई मेंशन्ड अर्लियर, सभी को हम्म, ग्रोथ चाहिए. ग्रोथ चाहिए. पहले लोग जो है ना घर पे पैसे नहीं हम्म, खर्च करते थे. कोविड में ये भी रियलाइज हो गया कि यस, आज की जिंदगी छोटी है, तो घर भी बड़ा चाहिए, स्पेंडिंग भी बड़ी चाहिए, और इनकम्स भी हाई चाहिए. ओके ओके. सो आपका टारगेट बायर जो है वो है 1.5 लाख पर मंथ का अर्निंग कैपेसिटी जिसकी हो. नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये हाँ, टारगेट है. हाँ, आई वुड से कि हम्म, क्योंकि मैं मेनली गुड़गांव में काम करता हूँ, तो अवर टारगेट हम्म,
income as in present current market scenario starts from 1 to 1.5 lakh rupees जो कमा रहे हैं. बट जो आज की प्रॉपर्टी गुड़गांव में हो गई है, जो स्टार्ट ही 3.5 CR से है, एक डिसेंट प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन. तो we target people who are whose income is more than 1.5 lakh rupees per month. But what about the people who are not earning that much? So, Do ma'am, you have any plans for them? अभी क्योंकि जो 180 गज वाली स्कीम है वो अभी रुकी हुई है. इससे पहले अगर हम बात करें कुछ पिछले 2 साल में लॉन्चेस के, तो वहां पर जो सेगमेंट था वो 1.5 से स्टार्ट हो जाता था, या रादर 80-90 लाख से स्टार्ट हो जाता था. बट अभी जो करंट लॉन्चेस है उसमें जो रेंज स्टार्ट हो रही है वो 3-3.5 CR से स्टार्ट होती है. तो इसलिए वो टारगेट सेगमेंट हमारा बढ़ जाता है गिवन द करंट मार्केट सिनेरियो. बाकी यस, देयर इज एन अफोर्डेबल, वो भी रुका हुआ है, अभी नए लॉन्चेस नहीं है. सो बट अगेन इट्स आवर वर्क इज टू मैच द क्लाइंट रिक्वायरमेंट एज पर व्हाट ही इज लुकिंग. दैट्स व्हाई वी गेट पेड. So, but what I'm saying is, but जो lower income group के लोग हैं, मतलब lower in the sense lower than 1 lakh, like you said 80-90 या उससे भी कम, उनके लिए भी आपके पास availability है? मैम अभी करंट न्यू लॉन्चेस में ये प्राइस सेगमेंट में अवेलेबिलिटी नहीं है. बट हैविंग सेड दैट, जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में पहले लॉन्च हुए थे वो रीसेल में ऑप्शंस मिल जाते हैं, या फिर कुछ इन्वेंट्रीज जो कंपनी ने होल्ड की होती है विद अ न्यू प्राइसिंग वो मार्केट में आ जाते हैं. तो बट हैविंग सेड दैट, प्राइसिंग जो प्रॉपर्टी है उसकी अलग अलग प्राइस रेंजेस हैं. सो हमारा काम ही वो है कि उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझते हुए उस प्राइस को मैच करके और उसको मीट कराना. ओके. सो आजकल के उसमें क्या ट्रेंड क्या है, किस तरह का घर, लाइक बड़ा घर तो ठीक है, लोगों को बड़ा घर चाहिए, 2 बेडरूम चाहिए, 3 बेडरूम चाहिए, बट उसमें भी क्या उनका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? आर इज देयर सम sort of trend that you see as when you look at interiors or when you look at the total coverage area के बाहर? Do you see some trends coming up? मैम आज की डेट में स्पेशली वी डील विद न्यू लॉन्चेस. सो उस न्यू लॉन्चेस में ट्रेंड दिखा गया बिकॉज या तो वो गुड़गांव स्पेशली मार्केट, या तो वो आउटसाइडर है और यहाँ पर काम कर रहा है और हस्बैंड वाइफ मिलकर ले रहे हैं, तो दोनों की इनकम्स क्लब हो जाती है. या फिर कोई जो दिल्ली से शिफ्ट हो रहा है या दिल्ली के आउटसाइड एरियाज में भी शिफ्ट हो रहा है, वो एक कॉन्डो लिविंग में शिफ्ट होना चाहता है बिकॉज ऑफ द एमिनिटीज. या फिर किसी ने कोई ट्रांजैक्शन वहां करी है और यहाँ पर शिफ्ट करना चाहता है. जैसे रीसेंट टाइम्स में एक्सपीरियंस की बात करूं तो वेस्ट दिल्ली से काफी लोग द्वारका एक्सप्रेस पे शिफ्ट होना चाहते हैं बिकॉज ऑफ दी क्वालिटी लाइफ. व्हेन आई से क्वालिटी लाइफ, उसमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि स्मार्ट चाहिए, आपको स्मार्ट लाइफ चाहिए, फिर क्लब चाहिए, पूल्स चाहिए, बच्चों के लिए सेफ्टी चाहिए, या फिर एक सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज चाहिए. So the trend is towards this luxury living, whether it's if even if it is starting for a 2 bedroom. अब luxury जहां पर 4-5 bedrooms की आ जाती है तो वहां पर कोई लिमिट नहीं है. But all the projects are, जो भी नए लॉन्चेस हैं वो ये सारी बेसिक चीजें बाय डिफॉल्ट मान रहे हैं. So जो पहले नहीं होता था, ये शिफ्ट हमने देखा है इन लास्ट 2-3 years. क्वालिटी ऑफ लाइफ पर ज्यादा स्ट्रेस है. Yes, ma'am. Especially the younger generation wants to live life today rather than saving it for future generations. Don't you think that this is the trend that was seen earlier in the West? Indians were never like that. Indians were always like saving today for tomorrow. But now people are for living today no matter what happens tomorrow. So it's a new India, ma'am. Yesterday only there was a viral video by a minister abroad who was saying कि आजकल डेट में जब मैं एयरपोर्ट पे जाती हूँ तो बाहर जाकर वेंडर्स खड़े थे, वेंडर्स में सबके पास पेटीएम और गूगल का वो था. तो ये भी आपने नहीं देखा?
तो ये भी हम ट्रेंड देख रहे हैं, तो जिसमें डिजिटल इंडिया हम्म की हम बात कर रहे हैं, तो जब हम डिजिटल हम्म इंडिया की बात कर रहे हैं तो घर भी तो डिजिटली साउंड होने चाहिए ना मैम। हाँ हाँ, ट्रू। तो तो आपके घर माइंड है डिजिटली, डिजिटली सारी सर्विसेज हैं उस आपके जो अपार्टमेंट्स आप बनाते हैं? यस मैम, सब में आ रहे हैं। आज की डेट में हाँ। ऑटोमेशन इज द की, हम्म। आई थिंक। ओके। ये अब कॉमन बात हो गई, जो पहले 1 डेढ़ साल पहले सुनाई जाता था, अब तो हर घर हम्म जो है वो ऑटोमेट पे ज्यादा, जो भी प्रमोटर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो इसी पे इंसिस्ट कर रहे हैं, बिकॉज they've read the ओके pulse of the new generation. ओके ओके ओके। योर स्ट्रेस इज ऑन B2B relationships with developers. Yes, Talk ma'am. about it. Talk about it. Tell मैम, us more. सो इसको इसको सिंपली समझते हैं कि हमारा हम्म काम क्या है। हमारा काम हम्म जो है वो बिल्डर से लाइसनिंग कर कर, हम्म उनसे फीडबैक लेकर या फीडबैक देकर एक बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आना। सो अलग अलग बिल्डर्स से B2B इंटरैक्शन से हमारी प्रोडक्ट रेंज, एक तो हमें पता मिलती है, हमें मिलेगी तो हम डाउनलोड करेंगे। फिर उसको बेस्ट प्राइस पे लेकर आना, ना ही हम्म सिर्फ बेस्ट प्राइस पे लेकर आना, बेस्ट पेमेंट प्लान पे लेकर आना। बिकॉज हम्म मेरा ये मानना है कि प्राइस और पेमेंट प्लान जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम्म अगर आप B2B पे इंसिस्ट करेंगे और राइट टाइमिंग पे लेकर आना, कि जैसे कि हम्म नवरात्र हो गए, या कोई भी ऑस्पिशियस डे पे, जैसे हम बात करते हैं थ्रू आउट द ईयर, या दिवाली टाइम पे लोग घर लेना चाहते हैं या घर पे मूव इन करना चाहते हैं, तो ये हमारा B2B से हमारे को एडवांटेज होता है। जब हमें पता चलता है तो हमारे कस्टमर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हम्म करेक्ट, ऑलवेज, फॉर एनीथिंग, राइट हम्म प्राइस पे राइट टाइम पे किसी भी प्रोडक्ट पे एंट्री करना इज अ विन विन, एंड दैट कैन ओनली हम्म। हैपन विद लाइजनिंग विद द बिल्डर्स, क्योंकि वो So सोर्स what पॉइंट all है। builders, what all builders are you working with? Well, we work with majorly all the developers in Gurgaon, हम्म starting हम्म from N3M, Smartworld, DLF, Omax, हम्म। Elan, Trinity Group, and many more. Okay. So as Like of they're now, you're limited. coming up, like Okay, okay, go ahead. अभी, जैसे अभी त्रिभोग एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। Then हम्म Navraj developer, they have a very very good layout and a good site, and हम्म good sizes layout. So I would say हम्म specifications बहुत अच्छी है। तो ये सारे हम्म नए डेवलपर्स भी आ रहे हैं जो मार्केट में हम्म। एक एक यूनिक प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। सो वी वर्क विद देम आल्सो। Okay. So as of now, you're working in Gurgaon only. यस मैम। Huh. So do you have any plans to like branch out to Noida and other NCR towns, Faridabad, Ghaziabad, Delhi? How's Delhi? विशेस तो बहुत है मैम, प्लान्स भी हैं, Hmm. एंड Hmm. इट डिपेंड्स कि गुड़गांव कितना फ्री टाइम देती है ये एग्जीक्यूट करने के लिए। Hmm. But I see अच्छा। lot of new launches Hmm. in recent times, so I think uh, planning से ज़्यादा execution जो है is the key to Hmm. move into other areas. Hmm. Do you see that happening in like near future? Not near future, but yes, Hmm. in future. Okay. So what is the situation in Delhi? The real Well, estate situation we in don't Delhi? we don't specially deal in Delhi, but what I know from my Hmm. associates is that एक ही Hmm. चीज वो कहते हैं, और जो चीज Hmm. सच भी है, कि गुड़गांव बहुत बढ़ गया, दिल्ली उस मुकाबले में नहीं बढ़ा। जैसे Hmm. I was, I mean, just 4 5 days back, I was having a dinner with a Delhi associate at his house in Hmm. Jigawang. तो वो ये Hmm. कहते हैं कि मैंने दिल्ली की जो प्लॉट रेट थे वो 5 से 7 हो गए, ठीक है, तो Hmm. 20-25% का जंप आ गया, ठीक है। पर Hmm. गुड़गांव की Hmm. प्रॉपर्टीज पिछले 2 3 साल में 100% बढ़ गए। तो Okay. ये जो शिफ्ट अपार्टमेंट्स में हमने देखा है वो दिल्ली Hmm. में नहीं है। सो क्या रीजन दो, है? आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एज फार एज दिल्ली इज कंसर्न, But मुझे you तो are in गुड़गांव the you are in गुड़गांव the बस हाँ, ये पता है। और मैं ये जानता हूँ कि
जिन्होंने ये जो नहीं कर रहे इन्वेस्ट, उन हाँ, सबको इन्वेस्ट करना चाहिए और गुड़गांव की ग्रोथ में अपने पैसे बढ़ाने चाहिए. So Asset Deals is there to multiply your assets. You can contact us. okay. Okay, okay, but see, I when I compare Gurgaon to Noida, there was a time when people would not look at Noida at all. They Correct, would ma'am. only want Gurgaon. But Correct. as of now, there are lot many reports that say that Noida is far better than Gurgaon. Uh, be it the property, be it the security, be it the infrastructure that is offered in the city. So, how do you compare? How do you keep Gurgaon above Noida? Because that thing is surely there. It's there in the minds of the people as well. Hmm, hmm. So yes, you're right. In recent times, there has been a movement in Noida market, and I agree. Mm, Infrastructure and everything is good in Noida. बेसिकली एक टेरर था जो टेरर नहीं है अब लोगों के दिमाग में. mm, बट आई वुड से इन वन mm, वर्ड, इसमें डिटेल में ना जाते हुए, दैट द mhm, क्वालिटी इन गुड़गांव इज बेटर. mhm. दिस इज व्हाट आई Okay, पर्सनली, and okay. I wish both the markets should grow, and people Mm. should invest in both the markets. And it's after all Delhi NCR. Yeah, yeah. So tell us about your property consultation services and how do you keep yourself abreast with everything that is happening around? Well, I know that's your job, but still, I ma'am, want to know it I from you. strongly feel that property Mm, uh, कोई भी खरीदवा सकता है, but as I mm, said earlier, एक mm, correct pricing पे, mm, जब product launch हो रहा हो उससे पहले information mm, देना. So there where Asset Deals is expertise in that. So market की पूरी knowledge और right time पे वो communicate होकर उसको ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी से प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर कर उसके बाद जो पोस्ट सेल सर्विसेज होती है वो भी mm, बहुत बड़ा मैटर है उस कस्टमर को अपने साथ लेकर चलने में. उससे होता यह है कि वो उससे रेफरेंसेस आते हैं और mm, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उससे और बढ़ता है. सो बिकॉज mm, एक्विजिशन ऑफ ए न्यू क्लाइंट इज, जो कॉस्ट है उसकी वो बहुत ज्यादा है. सो आई थिंक mm, इट्स कंप्लीट चेन इन इटसेल्फ. और mm, सबसे अच्छा तब लगता है जब कस्टमर आपको रेफरेंस देता है या वो दोबारा बाय करता है. बाय इसलिए करता है क्योंकि जो पेमेंट प्लान पे उसने गुड़गांव की प्रॉपर्टी ले रखी होती है, लेट्स से mm, किसी आज का नॉर्मल पेमेंट प्लान होता है 30% टुडे और बाकी सुपर स्ट्रक्चर. mm, उस सुपर स्ट्रक्चर में 3 साल लगते हैं या 4 साल लगते हैं. mm, तो वो जो 30% पे उसको जब 30% ग्रोथ मिल जाती है, जिसको मैं mm, 100% कहता हूँ, और होना mm, 100% ही है, तो वो जब दोबारा री इन्वेस्ट करता है ना, दैट गिव्स यू mm. a high, and that's what differentiates you from others. And that's the mantra which we follow. So that means, according to you, your transparency is something that keeps you ahead of all your competitors. It's not only, it's professionalism and it covers it all, I think. Mm, ट्रांसपेरेंसी से सब नहीं आता, प्रोफेशनलिज्म में सब कुछ mm, आ जाता है. ऑनेस्टी, mm, ट्रांसपेरेंसी, सर्विसेज, mm, mm, गाइडेंस, एंड फॉलो अप्स, एवरीथिंग है ना, एंड अ गुड टीम आई वुड से, बिकॉज मैं अकेले नहीं कर सकता. mm. ठीक है. और आपका जो बायर्स का, होम बायर्स का जो एज ब्रैकेट है, व्हाट इज दैट? what age group people are buying homes? And see, tell me, say 30 to 40 people are buying which kind of homes, or older people are buying according to age brackets, age groups. What is the preference towards the kind of homes they want? So it's a very diverse market, I would say. Hmm, Buyer in the market, buyers, in fact, you'll be surprised. पहले हम hmm, नहीं सोचते थे. I mean, buyers are today there in the age group of 25 to 27 also. You know,
And Okay. then there are buyers at the age of 30 also, like I have a good team, so उसमें भी 30 Mhm. years में लोग आज की डेट में ये कहते हैं कि यार मुझे प्रॉपर्टी लेनी है. पहले ये ट्रेंड नहीं होता था, you know. Mhm. So even at the age of 30, people are buying properties 2 3 cr or 4 cr also, because there is a power which they have, which is a loan power, you know. Mhm. बिकॉज अगर प्रॉपर्टी 3 CR की भी है तो आपकी फंडिंग जो है 60 लाख रुपीस की है, और वो 60 लाख रुपीस में अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो वो सेविंग से क्लब हो जाते हैं, या फिर वो पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है. Mhm. और बाकी Mhm. 80% जो है वो लोन हो जाता है. और जब Mhm. मार्केट हाई ग्रोथ पे हो तो वो लोन पावर लेते हुए उनको पता है वो Mhm. 9% की जो इंटरेस्ट कॉस्ट वो बेयर कर रहे हैं is Mhm. not that great amount when the market is growing at 70, 80 or 100%. So we encounter different age groups today. Even Mhm. like एक कस्टमर वो है जो दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट करना चाहता है, ठीक है, या एक Mhm. कस्टमर ऐसा है जो अपग्रेड करना चाहता है. लेट्स से कोई कस्टमर Mhm. डीएलएफ फेज 5 से फेज 6 में अपग्रेड करना चाहता है, बिकॉज वो कॉन्डोज जो हैं वो पुराने हो गए, ठीक है. तो उनको फेज 6 में जैसे डीएलएफ परवाना नया लॉन्च है, तो वहां पर Mhm. नया घर चाहिए, विच वी वेर डिस्कसिंग की डिजिटली Mhm. नाम दे रहे थे, तो Mhm. मॉडर्न इम्यूनिटीज चाहिए. सो Mhm. अच्छी बात यह है कि पीपल एट डिफरेंट एज ग्रुप्स आर इन्वेस्टिंग इन टुडेज रियल एस्टेट मार्केट. Okay. Okay. And what about the older people? I want to know. See, there I have seen many couples that who are selling their big homes because बच्चे बाहर चले जाते हैं, or then करेक्ट. the husband wife are staying alone, so they have big houses. A couple of तो cases आई I गिव have in my प्रैक्टिकल circle एग्जांपल. only. मेरी हाँ जी. प्रैक्टिकल जो हमें एक्सपीरियंस हुआ, जैसे हम्म. ये कपल हैं अराउंड 65, हम्म. और ये जनकपुरी में रहते हैं. इनफैक्ट हम्म. आई वेंट टू विजिट देम एट देयर प्लेस. उनके पास हम्म. 500 गज का ना नारायणा के पास एक बहुत लग्जरियस प्राइम लोकेशन है, पर उनके बच्चे बाहर सेटल हैं. सो दे बॉट अ हम्म. प्रॉपर्टी एट द्वारका एक्सप्रेसवे एट प्रोजेक्ट एंट्री Okay. मैंशन, जो अभी रिसेंटली हम्म. लॉन्च हुआ था. तो हम्म. यहाँ पर मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि हम्म. बेटे हमारा इतना बड़ा घर मैनेज ही नहीं होता, और हमारे बच्चे हाँ. वापस आएंगे नहीं. अच्छा, वो हाँ. कहते हैं शायद अब वो सोचते भी हैं, तो वो ये कहते हैं हम्म. कि आप कॉन्डो लिविंग ले लो जहां पर हमारे को जिम चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, और हम्म. हम वहां पर फिर भी सोच सकते हैं अनदर, या जब भी हम वेकेशन पे आए तो हमारे को ये मॉडर्न एम्यूनिटीज हमें चाहिए. सो दैट इज द हम्म. अनदर सेट ऑफ बायर्स एक्टिवली हम्म. इन्वॉल्व इन बाइंग हम्म. कॉन्डोज, जिसकी वजह से मैं हम्म. आपको बोल रहा था कि अब हमें डिफरेंट एज ग्रुप्स नजर आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 25 हम्म. टू 265. 70 also. Okay. Okay. And what about the cases of like assisted living or community living? ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो स्पेसिफिक होम्स बनाते हैं असिस्टेड लिविंग ओल्डर पीपल के लिए, हाँ अ, जी. या वैसे अभी फिर सेंट्रल एक प्रोजेक्ट बिल्डर है, उसने सीनियर सिटीजन्स के हाँ. लिए एक लॉन्च लॉन्च किया था. दो वी हाँ. हाँ. डोंट स्पेशलाइज इन दैट, हाँ. बट यस, दैट ओके. इज द न्यू कॉन्सेप्ट एंड इट्स सेलिंग वेल. ओके. ओके. एंड असिस्टेड लिविंग भी होता है ना जहाँ पे पेशेंट्स वगैरह जैसे हैं रिकवरी पीरियड के लिए, या वह आते हैं फॉर सम मंथ्स और ईयर इन केस ऑफ स्ट्रोक एंड ऑल. सो ऑल दोज प्रोजेक्ट्स, what's the situation? What is the ground reality there? Do we have Well, enough of? I am not the correct Hmm. person for that, because But we you are don't. in the real estate, no? That's why Yeah, I'm so asking you. जैसे कि मैंने बताया कि यस, मूवमेंट है Hmm. इसमें भी, बट Hmm. सीनियर सिटीजन्स का तो मुझे पता है. हाँ, गुड़गांव में है ऐसे. हाँ. ओके. सो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं which you are really looking forward to, which you're very happy about? Well, presently there is a new launch by DLF, which is DLF Uh-huh. Birvana West, Uh-huh. in the range of 7 CR. That's the current Mhm. new launch. Then we Mhm. have a new product by M3M at
गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड सेक्टर 65, हम्म, वो गोल्फ हम्म, एस्टेट के पास ही लेकर आ रहे हैं। इनफैक्ट 3 टावर्स हैं। हम्म, हम्म, तो that's a very exciting launch because the product हम्म, is yet to be unveiled. I think in a day or हम्म, two, that will be interesting okay, to see कि क्या लेकर आ रहे हैं, because हम्म, M3 Golf Estate अपने आप में एक luxurious product है, resort living है, हम्म, तो हम्म, that is something exciting. Well, हम्म, then there is Signature Global coming up with apartments. So there are a lot of new launches in next 3 to 4 हम्म. months. And you are hopeful that they'll be like sold in It's not quickly being in me days. hopeful. It's what the trend हाँ, shows कि हाँ, हाँ, अगर इन्वेंट्री आप लेने चले जाओ तो बिल्डर के पास हम्म, इन्वेंट्री नहीं है, और हम्म, क्यू में लगना पड़ता है आपको। जैसे गोदरेज के प्रोडक्ट्स अभी लॉन्च हुए हैं, और फिर हम्म, आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है कि प्रोडक्ट आपके पास ये टाइम है। तो हम्म, दैट इज द ट्रेंड which is there in the market, and हम्म, I'm very confident rather than being हम्म. hopeful that this trend will continue. For how many more years? Well, the production should be Hmm. for next 1 or 2 years, and Hmm. that I see that this trend will continue for another 2 3 years. Okay, okay. And in your like say last 15 years of working in the real estate, do you would you like to talk about any interesting anecdote, any interesting incident that happened with you wherein you like somebody purchased a house and कुछ भी something which stayed in your mind? हाँ, मतलब ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें Mm, जब किसी को प्रॉपर्टी हमारे थ्रू परचेज हुई और वो mm, और बढ़ गई, तो mm, बहुत सारी गुड विशेस आती हैं। और mm, इनफैक्ट एक कपल को हमने गुड़गांव शिफ्ट कराया था, एंड mm, मतलब उन्होंने एक चॉकलेट्स भेजे हमारे लिए। तो या फिर नो, कई बार तो कहते हैं ना दुआओं में बहुत दम होता है, तो वो जब दुआएं mm, मिलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और mm, प्रैक्टिकली वो जब रेट बढ़े तो क्लाइंट्स खुश होते हैं। तो mm. दिस इज व्हाट एक्चुअली द रियल अर्निंग इज। Okay. Any tough or very demanding client you came across? टफ भी मैं मानूंगा, क्योंकि क्या हुआ है ना कि रेजिडेंशियल तो Hmm, ग्रोथ में है, कमर्शियल थोड़ा सा hmm, स्लो हुआ है, तो वहां पर hmm, थोड़ा सा टफ हो जाता है। hmm, थोड़ा थोड़ा टाइम जो है वो होल्डिंग टाइम बढ़ गया, तो वो भी टफ अच्छा, सिनारियोस देखे हैं, बिकॉज hmm, लाइफ में प्लस माइनसेस दोनों होते हैं। बट अच्छी बात यह hmm, है कि होल्डिंग टाइम के बाद hmm, क्योंकि रिटेल की मूवमेंट पिछले 1 साल में ठीक ठाक हो गई है, सो वो भी hmm. कर्व इज गेटिंग बेटर। ऑफिसेस ऑब्वियस ग्रोथ में आ गए हैं, तो उसमें भी जो Hmm. रिटर्न्स उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो अच्छी हो गई हैं। Okay. So it's all rosy, rosy picture when you see the real estate and in the coming few years, next few years. या मतलब अगर लोगों के पैसे बढ़ रहे हैं एंड इट्स अ रोजी Hmm, पिक्चर, एंड लोगों को अच्छे hmm, घर मिल रहे हैं विद द hmm, बेस्ट एमिनिटीज, इट्स अ रोजी पिक्चर। hmm. एंड Okay. वी आर गेटिंग बिजनेस, इट्स अ रोजी पिक्चर। Uh, yeah, yeah. ठीक है. Okay, thank you so much, Vineet, for talking to us. And I wish you all the best for all your ventures. And I I wish you come to the other parts of Delhi NCR as well and not limit yourself to Gurgaon alone. यस मैम, दुआओं में दम होता है। थैंक यू सो मच। Yeah, thank you so much. थैंक यू।